हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है जो सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उनके लिए क्वेश्चन सोल्यूशन जो है त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और ये आपके समक्ष एमसीक्यू भी रहेगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेंगे। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। त्रिपान स्टडी सेंटर ने उन क्वेश्चनों को उठाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम नर डाल सकता है। इस पे हमने एनालाइज करना है, समझना है और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। लेकिन आपको पता है कि ये पेपर सोल्यूशन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important question paper here, class 10 CBSE NCERT here. You know that is the most important question here, and the next question arrive here, that's the most important. How would you elevate of Napoleon as the administrator who create a more a rational and efficient system, included with their suitable example? You know that is the most important question for the exam view here. Napoleon as the administrator who is the creator more rational and efficient system. The Civil Code of 1804. The Civil Code of 1804 is usually known as the Napoleon Code. You know that Civil Code of 1804 is also called to Napoleonic Code here. And secret their right of property, establish equality before the law, and remove all the prejudice based on a birth. You know that's important. The Napoleon Code secured that right to be property and established the equality before the law and removed all the prejudice based on birth. The Napoleon Code was followed by the regional under to the French control. The Napoleonic Code was followed by their regions under to the French control. That's important. The new businessman and artisan, peasant and workers enjoy a newfound freedom here. You know that's important. New businessman, artist, peasant and worker enjoy a newfound freedom here. In territory under French control, such as Italy, Germany, Switzerland, and Dutch Republic, peasants were freed from to the nominals due, and peasants were freed from to the serfdom's feudal system was abolished. Administrative division were simplified. That's important. And guild restriction were removed in a town. Guild restriction were removed in a town. And there were improvement in the communication and transport system. That's important here. To facilitate there is the movement and exchange of goods and the capital from one region to be another, a small scale producer of the goods and businessmen began to realize that a common national currency and a standardized measuring and weight and uniform law were a great help. That's the most important Napoleon achievement on this period of time here, and the Napoleon Code here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है सोशल साइंस का।
और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। और हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ क्वेश्चन है कि एक अधिक तर्कसंगत और कुशल प्रणाली बनाने वाले शासक के रूप में आप नेपोलियन का मूल्यांकन कैसे करोगे। देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन यहाँ पर घुमा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो आप इसको साधारण रूप में देख सकती हो। यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया गया है कि नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक अधिक तर्कसंगत और कुशल प्रणाली बनाने वाले शासक के रूप में आप नेपोलियन का मूल्यांकन कैसे करोगे, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन पहले तो आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन साधारण तौर पे आप अगर समझोगे तो यहाँ पर नेपोलियन ने जो राजनीतिक में बदलाव किए थे, जो उसने सुधार किए थे, एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली घुमा दिया गया है, आपको समझ से थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, लेकिन समझना चाहोगे तो बहुत आसान है कि नेपोलियन का जो है राजनीति में सुधार क्या क्या किया गया, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताना है। अब हम आंसर की तरफ अगर नज़र करें तो कहते हैं 1804 का नागरिक संहिता, यानी जो है यहाँ पर कहा जाता है 1804 में नागरिक संहिता जो नेपोलियन के द्वारा तैयार किया गया था, जिसे आमतौर पर नेपोलियन कोड भी कहते हैं, नेपोलियन संहिता के रूप में भी जाना जाता है, इसे हम नेपोलियन कोड के रूप में जानते हैं, ने संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया। नेपोलियन ने सबसे पहले जो सुधार किया था वो किया था संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करना, कानून के समक्ष समानता स्थापित की और जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार हटा दिए। ये इसकी सबसे बड़ी सुधार प्रणाली थी कि उसने संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया और कानून के समक्ष समानता स्थापित की और जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार को हटा दिया। जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार हटाने का अर्थ ये हुआ कि जैसे आपके माता पिता का सारा धन दौलत आपका ही हो जाता है, नेपोलियन ने इस बात को कैंसिल कर दिया। अब जो है संपत्ति का अधिकार उनको मिलता था जो माता पिता की सेवा करते थे। सेवा करने वालों में एक लड़की भी हो सकती थी, बेटी भी हो सकती थी, एक नौकरानी या एक नौकर भी हो सकता था। तो इसने इस बात को जो है हटा दिया कि जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार को नेपोलियन ने हटा दिया, जिसको 1804 के नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता है। इवन देखें तो फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन संहिता का पालन किया गया, यानी जो क्षेत्र नेपोलियन के अधीन थे उन क्षेत्रों में इस जो नेपोलियन कोड जो 1804 को बनाई गई थी, हर क्षेत्र में जो है इसका पालन किया गया, क्योंकि वो सारे क्षेत्र जो थे नेपोलियन के अधीन थे। नए व्यावसायिक कारीगरी किसानों और श्रमिकों ने नई नई स्वतंत्रता का आनंद लिया। इससे बहुत से लोगों को काफ़ी खुशी मिली, जैसे कि नए व्यवसायियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, कारीगरों को काफ़ी उत्साह मिला, किसानों को काफ़ी राइट्स दी गई और श्रमिकों ने नई नई स्वतंत्रता का आनंद लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जो 1804 नेपोलियन कोड थी वो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। इवन देखिए तो इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और डच गणराज्य जैसे फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किसानों के जागीरदारी से मुक्त कर दिया गया। किसानों को जो है भूदास प्रथा से मुक्ति दे दी गई और समावर्ती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रशासनिक विभाजन को भी सरल बना दिया गया। देखा जाए तो नेपोलियन ने यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए और ये सिर्फ अपने क्षेत्र जिसमें नियंत्रित थे उस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी नियंत्रण क्षेत्र देखा जाए तो इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डच गणराज्य थे, जहाँ पर नेपोलियन ने जागीरदारी से मुक्त कर दिया। किसानों को जो जागीरदारों को जो कर देते थे इससे मुक्ति मिल गई। किसानों का जो है भूदास प्रथा से मुक्ति मिली, क्योंकि पहले किसान जो थे अपने ही भूमि पर एक दास के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि वहाँ पर जागीरदार जो होते थे उनके सारे संपत्ति पे, सारे भूमि क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते थे और जिस कारण से जो है किसान अपने ही भूमि पर दासों की तरह जो है व्यवसाय करते थे। तो नेपोलियन के यहाँ सुधारों से सबसे अधिक अगर सुधार हुआ तो किसानों को हुआ, जिनके कारण समाती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रशासन विभाजन को भी सरल बना दिया गया। देखा जाए तो कम्बो में गिल्ड
प्रतिबंध हटा दिए गए। जो कब्बों में गिल्ड प्रतिरोध लगाए गए थे उन सभी को हटा दिया नेपोलियन ने। संचार और परिवहन प्रणाली में भी काफ़ी नेपोलियन ने सुधार करके दिखाया। कहते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल और पूंजी की आवाजाही और विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है माल के छोटे पैमानों के उत्पादनों और व्यापारियों को यह एहसास होना शुरू हुआ कि सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा होना जरूरी है। मानकीय माप, वजन और सामान्य कानून बहुत मददगार थे जो नेपोलियन ने बेखूबी लागू किया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोई भी सामान पहले के समय में जो है हाथों से मापी जाती थी, अंदाजे से जो है लगाए जाते थे, तो ये पद्धतियाँ काफ़ी सुविधाजनक नहीं थी। कहते हैं दूसरे देशों में अगर व्यापार करना था तो उसके लिए एक मापदंड होना जरूरी है। और यहाँ पर नेपोलियन ने सबसे बड़ा सुधार यही किया कि उसने माप तौल के प्रणालियों को जो है एक सिस्टमैटिक बनाया। यानी देखा जाए तो सामान्य राष्ट्रीय उसने मुद्रा बनाया, मानकीकृत माप बनाई, वजन और सामान्य कानून बहुत ही उसके लिए मददगार साबित हुआ। तो देखा जाए तो नेपोलियन ने यहाँ पर प्रशासनिक सुधार करने में अपना हर संभव कोशिश किया और इसी कोशिश के कारण हमें बहुत सी नई चीज़ों का जो है देखने को मिला। तो यहाँ नेपोलियन के सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण थे और नेपोलियन के जो 1804 कोड थे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ गए होंगे नेपोलियन के सुधार। ठीक है, अगर समझ में आया, मन से तिरपान स्टडी सेंटर की मदद करने के चाहते हो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने से दोस्तों ये होता है कि जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, जो 10वीं क्लास में होंगे, उनको ये वीडियो मिल जाएंगी। और यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चला रहा है जो पेपर के अंतर्गत है, और ये पेपर के क्वेश्चन आंसर ही हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी इम्पोर्टेंट हर एक जो है शिक्षक जानता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हर जगह इम्पोर्टेंट रखता है। इसलिए सोचिए नहीं, शेयर की भावना अपने मन में बनाइए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो 8 से लेकर MA तक जो है तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए भी बहुत कुछ है। कुछ ही समय में आप देख सकते हो कि प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।